what is the switch gear? I don't know क्या switch gear जानते हैं तो होगा, थोड़ा मुझे आइडिया दीजिए. Anyone? Okay. So basically what I will cover here, low voltage switch gears, basics क्या होते हैं और लो वोल्टेज का एप्लीकेशन क्या है, मोटर स्टार्टर्स के ऑपरेशंस हैं इसके, DOL starter which is direct automatic starter and starting test. So first of all I will brief about the switch gears. So if I say in very simple language, so switch gear is a product which can do three things. First one is the isolation, switching and protection. Protection for instruments and cables. Another short circuit, overload, these kind of faults, earth leakage and earth fault. Second, isolation. Isolation means कि इंडस्ट्री में मेंटेनेंस पर अगर कोई काम चल रहा है तो वहाँ पे इट इज रिक्वायर्ड कि जो सोर्स है वो तो सप्लाई से कट हो जाए कंप्लीटली. कट का मतलब इसमें जो कॉन्टैक्ट है स्विच गियर के वो ऊपर इतने होने चाहिए कि अगर नमी है इन्वायरमेंट में एक लीकेज करंट जो कि 0.2 मिलीएम्पियर में है वो भी फ्लो ना हो एयर में, राइट. कंप्लीट आइसोलेशन एंड स्विचिंग. स्विचिंग मींस ऑन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट or load. So these are the work of switch gears. Why it is called low voltage? So according to the standard up to 1000 volt it is considered as low voltage, and these are the products which are rated under 100,000 volt. So now these are the content which I will take you through today. Low voltage power distribution network, introduction of motor starter, necessity of motor starter, hardware used in motor starter kit, and briefing of LVS product and meter, motor starting methods, overview of this kit, features of motor starter kit, and the benefits of this training. So as I said, in electrical system there are various voltage systems which is called LV, low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage and ultra high voltage. So up to 1 kilovolt the voltage level is considered as low voltage. From 1 kilovolt to 35 kilovolt the voltage system is considered as medium voltage, and from 35 to 230 volt the voltage system is considered as high voltage, and 230 to 800 it is considered as extra high voltage, and above 800 it is considered as ultra high voltage. Nominal voltage means some RMS value जो बोलते हैं बेसिकली रेटेड वोल्टेज है जो इन प्रोडक्ट को दी जाती है, इसमें डिजाइन दिए गए हैं काम करने के लिए. ये वोल्टेज है अंडर 1000, so that's why it is called low voltage products. Now how basically low voltage power is distributed in any network. Let's say if I take an example of automotive industry, किसी भी अगर मैं इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ तो हर एक इंडस्ट्री में बहुत सारी शॉप एंड फ्लोर्स होते हैं, और हर एक लाइक फैमिली शॉप, पेंट शॉप, इंजन शॉप वगैरह जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की एग्जांपल लेता हूँ, हर एक शॉप एंड फ्लोर्स का अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है जिसको हम MCCB बोलते हैं. नाउ these are the power transformer symbol, जो दो रिंग्स हैं, these are the power transformer symbol which are installed right at the beginning of any industry. पहले यहाँ पे आती है these power transformer convert the voltage level into the usable level in industry. फिर उसके बाद जो ये येलो पार्ट है, so these are the PCC, power control center. So it is the first panel in incoming side in NT which has highest capacity
breakers and switch gears. So as I have put a picture here, ACB stands for air circuit breaker. It is the highest rating switch gear in LT. So ये वाला जो ब्रेकर है ये बेसिकली नॉर्मली पीसी से यूज होता है, जो कि आपका फर्स्ट पैनल होता है किसी भी इंडस्ट्री में. PCC is the power control center. Now further जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग-अलग शॉप्स एंड फ्लोर्स में. So here MCCB, which is stands for molded case circuit breaker. MCCB इस डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे यूज होती है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जो MCCB है जब भी हम शुरू से लोड साइड चलते हैं जो फॉल्ट लेवल है, फॉल्ट लेवल हमारा कम होता जाता है. सबसे ज़्यादा फॉल्ट लेवल पावर ट्रांसफार्मर के नियर बाई होता है. जैसे ही हम लोड साइड चलते हैं तो इम्पीडेंस ऐड होता चले जाता है, जिसकी वजह से फॉल्ट लेवल कम होता चले जाता है. तो इसलिए हमें जब हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं शॉप्स एंड फ्लोर्स पे, तो वहाँ पे फॉल्ट लेवल कम होता है, इसकी वजह से रिलेटिवली लोअर रेटिंग स्विच गेयर्स वहाँ पे यूज करते हैं. तो MCCB इज द रिलेटिवली लोअर रेटिंग ब्रेकर देन एयर सर्किट ब्रेकर. Now power is further distributed to the load side. अब जो इंडस्ट्रियल लोड्स क्या होते हैं? In today's scenario, motor basically contributes more than 80% of the load. तो हर एक चीज में मोटर लगी हुई है, चाहे वो रोबोट्स हो या वेलवेट्स हो, फैंस हो, मोटर contributes more than 80%. मोटर को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली वी रिक्वायर द मोटर स्टार्टर्स, एंड these are the control gear products which are the motor starter related products, contactors and relays. And second products are the FDP. FDP stands for final distribution products, which includes MCB radiation circuit breaker, isolator and DBs. MCB आपने DBs के अंदर इंस्टॉल की देखी होगी और आइसोलेटर भी देखा होगा. बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि ये भी एक सेम दिखने वाला डिवाइस है, MCB और आइसोलेटर भी सेम ही दिखता है. What is the difference in MCB and isolator? तो ये डिफरेंस होता है कि MCB प्रोटेक्शन देती है ओवरऑल और शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट में, whereas on the other hand जो आइसोलेटर है, आइसोलेटर कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है. इट इज अ स्विचिंग डिवाइस which gives the complete isolation and switching. तो जब भी हमें अगर मेंटेनेंस वो करना है तो भी हमें श्योर होना होता है कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो सोर्स से कंप्लीटली कट हो चुकी है, एंड देयर इज नो रिस्क टू वर्क फ्रॉम दैट फीडर. उसके लिए हमें आइसोलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दीज आर द मॉड्यूलर प्रोडक्ट्स व्हिच आर इंस्टॉल्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन box. So this is how power is distributed in any industry. Now we will talk about the magnetic starter or motor starter. So motor starter में जो प्रोडक्ट होते हैं, what are the products? So basically motor starter is used for to start a motor, and second thing is to limit the induced current. So basically मोटर के अंदर कॉन्टैक्टर होता है, दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉन्टैक्टर एंड प्लस ओवरलोड रिले. कॉन्टैक्टर इज अ मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस एंड ओवरलोड रिले इज अ ओवरकरंट प्रोटेक्शन डिवाइस. तो यहाँ पे मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्विचिंग डिवाइस चाहिए जो ऑन ऑफ करते हैं मोटर को, और एक प्रोटेक्शन डिवाइस चाहिए कि अगर फॉल्ट आता है, ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, सिग्नल किसी होती है, तो हमें उसको प्रोटेक्शन मिल जाए. So when we combine this contactor and overload relay, it will become the motor starter, DOL starter, direct overload starter. तो मोटर को स्टार्ट करने के और मेथड्स हैं, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, और स्टार्टिंग स्टार्टर है. नॉर्मली जो कम रेटिंग की मोटर्स होती हैं 5.5 किलोवाट तक, और हम इनको DOL स्टार्टर के थ्रू स्टार्ट करते हैं. This is the internal picture of this protector, and
there again. These are the control supply basically. The main circuit है, right? This is the conductor. Conductor के अंदर क्या होता है? Electromagnetic coil होती है. When we supply to the conductor, तो magnetic field induce होगा और एक moving core और एक fixed core. मैं आने वाले slides में बताऊंगा. When they will touch together, तो main conductor वो lose हो जाता है. जैसे main conductor lose हो जाता है, power incoming से outgoing side flow होता है. मैग्नेटिक स्टार्टर बेसिकली दो टाइप से रहते हैं, नॉर्मल टाइप और रिवर्सिबल टाइप. नॉर्मल टाइप में जो मोटर है वो एक डायरेक्शन में हम रोटेट करा सकते हैं, बट अगर ऐसे रिक्वायरमेंट है जहाँ पर हमें रिवर्सिबल रोटेट कराना है मोटर को, रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी, मैं वहाँ पर रिवर्सिबल टाइप मैग्नेटिक स्टार्टर को यूज करते हैं. नाउ दीज मोटर स्टार्टर बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड होता है, कहाँ पे लगा सकते हैं? तो दीज आर सिचुएटेड नियर बाय द लोड, नियर बाय द मोटर्स और इन एमसीसी फीडर्स. So this is the circuit diagram and image diagram of magnetic starters, loaded circuit breaker. Then after that there are two feeders. One of the feeders is motor feeder, जिसमें हमने मैग्नेटिक कंडक्टर और थर्मल ओवरलोड लगाया है. तो ये हम दो प्रोटेक्शन डिवाइसेस मिले हैं. इसके अलावा हमने यहाँ पे तकनीकी सर्किट ब्रेकर भी लगाया है, जिससे हमारा प्रोटेक्शन मिल जाती है. Now, what is the causes of motor failure? Motor failure होती है. तो we have considered these few points which are very important and related to the motor failure. Overload and single phasing. अगर आप ये पाई चार्ट इसमें देखो, overload and single phasing contributes 44%. These are the major reasons motor failure to overload and single phasing. What is the overload? When जब भी मोटर है, मोटर डिजाइन की गई है एक अपने स्टार्टिंग लिमिट जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट उसको फ्लो कराने के लिए. बट अगर उस सर्किट में हम और ज़्यादा मोटर के ऊपर लोड लगा देंगे तो उस मोटर को और ज़्यादा करंट ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज द ओवरलोडिंग कंडीशन. इसकी वजह से क्या होगा, जो हीटिंग होगी मोटर के अंदर और जो इंसुलेशन है वाइंडिंग का वो बर्न हो जाएगा. वो बर्न होने से क्या होगा, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस निकलेंगे. वाइंडिंग कभी चल सकती, वाइंडिंग कभी नहीं चलेगी क्योंकि वो एक मेटालिक पार्ट से बनी होती है. मेटालिक पार्ट जलता नहीं है, वो बेंड होता है. जलता क्या है, जो उसके ऊपर आइसोलेशन होता है, इंसुलेशन बेसिकली जलता है. प्लास्टिक आइसोलेशन प्लास्टिक प्लास्टिक फिर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. हैवी स्टार्टिंग. तो बेसिकली अगर मोटर के ऊपर हम हाई लोड के साथ स्टार्ट करेंगे तब भी यहाँ पे अगेन ओवरलोडिंग कंडीशन बनेगी और जो हीटिंग है मोटर के अंदर वो रहेगी, जिसकी वजह से चांसेस हो सकते हैं मोटर के फेलियर. लॉक रोटर. लॉक रोटर में क्या है, रोटर की जो रोटर एंगल किसी वजह से लॉक हो जाता है मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से. तो उस कंडीशन में मोटर जो स्टार्ट जो करंट है वो हाई ड्रॉ करेगी, जिसकी वजह से अगेन हीटिंग जनरेट होगी मोटर के अंदर और मोटर फेलियर के चांसेस वहाँ पर बन जाते हैं. सप्लाई वेरिएशन. अगर कोई इनकमिंग सप्लाई में इनबैलेंसिंग है तब वहाँ पे हीटिंग इशू हो सकता है. नंबर ऑफ स्टार्ट्स. मोटर को अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्ट्स मतलब स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करेंगे तो उस कंडीशन में भी हीटिंग ज़्यादा रहेगी. सिंगल फेसिंग. सो व्हाट इज द सिंगल फेसिंग? सिंगल फेसिंग इज दैट कि हमारे पास RYP तीन फेसेस हैं. तीन फेसेस में से अगर एक फेस कट हो गया तो बाकी के जो दो फेसेस हैं उनके ऊपर हाई करंट फ्लो करेगा एट दैट टाइम, जिसकी वजह से
हाई करंट फ्लो होने की वजह से जो करंट वाइंडिंग है वहाँ पे हीटिंग होती है और अगेन फेलियर हो सकता है मोटर की चांसेस होते हैं। तो सिग्नल फेसिंग इज वन ऑफ द रीजन। मैकेनिकल प्रॉब्लम, अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम है कि अगर जो शाफ्ट है वो उसकी वजह से अगर उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा मोटर को घूमने के लिए तब वहाँ पे हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मैकेनिकल प्रॉब्लम के अलावा एनालाइज एंड कूलिंग, अगर जो वाइंडिंग है उसके अंदर जो पैसेजेस है कूलिंग पैसेजेस वो अगर प्रॉपरली नहीं है तो वहाँ हीटिंग प्रॉपर नहीं है तो एम्बिएंट टेम्परेचर भी रहता है काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर और हीट डिसिपेशन भी प्रॉपर नहीं है तो जिसकी वजह से इंटरनल वाइंडिंग का इंसुलेशन जो है बदलने के चांसेस मिल जाते हैं। हाई एम्बिएंट मतलब गवर्नमेंट जो टेम्परेचर है जहाँ पे इंडस्ट्री में लगी हुई है मोटर वहाँ का टेम्परेचर इट्सल्फ बहुत ज़्यादा हाई है। नॉर्मली क्या रहता है 40 डिग्री इज द नॉर्मल टेम्परेचर इन इंडस्ट्री, बट इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चले जाता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड चले जाता है, 60 चले जाता है। तो इन कंडीशंस पे अगर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है इट्सल्फ इज हाई तो मोटर के अंदर जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो पुअर रहेगा और वहाँ पे हीटिंग की प्रॉब्लम रहेगी जिसकी वजह से चांसेस हो सकते हैं इंसुलेशन के जलने के। तो हाई एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए अलग क्लासेस डिफाइन होती हैं मोटर के अंदर इंसुलेशन क्लासेस। तो लाइक नॉर्मली बी चलती है फिर एफ क्लासेस आती है, वहाँ उस आधार पे उस अकॉर्डिंगली जो क्लासेस है मोटर की वो चूज करनी होती है। So these are the some reasons. Now, what is the need of motor starter? To on off operation, to limit the inrush current or starting current, limit the mechanical distress on the motor due to inrush current, overload and signal facing protection. Now, जो मोटर स्टार्टर है इसके अंदर जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं उनका मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। What are the products which are basically installed in the motor starter, and the first one is the contactor. So contactor is the mechanical switching device which can switch the load on and off कर सकता है, and it is the electrically operated device. It cannot operate mechanically. जब भी basically ये structure है ST55 is the model name of this contactor. L1, L2, L3 these are the main terminals and incoming gate terminals. T1, T2, T3 are the main outgoing terminals. तो इस contactor के अंदर basically तीन circuits हैं. First one is the main circuit जो मैंने अभी बताया. Second one is the auxiliary circuit. जो side में आप ये देख रहे हो these are the auxiliary circuit. Auxiliary circuit is the NOLC contact elements. So these are the potential free contacts. NO-NC contact है combination है. NO means normally open और NC means normally closed. अभी contactor off है जो NO contact है वो normally open है. जैसे ही contactor on होगा as these are the potential free contacts और internally connected होते हैं तो NO और NC ये तीन जो state है उसको change कर लेते हैं. NO NC बन जाता है, नॉर्मली क्लोज बन जाता है और NC जो कॉन्टैक्ट है वो NO हो जाता है. थर्ड इज द कंट्रोल सर्किट. कंट्रोल सर्किट में बेसिकली एक कॉइल इसके अंदर लगी रहती है जिसको हम सप्लाई देते हैं तो जब मैग्नेट अंदर बनता है तो these are the control device. तो जैसा मैंने बताया इट इज द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइस. तो इसको ऑपरेट कराने के लिए हमें कंट्रोल सप्लाई देनी होती है. So ST50 is the model name here, and third one is the AC 200 volt. ये क्या है? AC 200 volt इसकी coil की designation है. Now we will get to B. A refers to NO and B refers to NC. 2 का मतलब यहाँ पे दो NO contacts लगे हैं contactor के अंदर और B का मतलब दो NC contactor आपको मिल जाते हैं. So this is the internal structure of conductor.
आप देखोगे मूवेबल कॉन्टैक्ट कैरियर। ये इंडिकेशन है, इंडिकेट करता है कि कॉन्टैक्टर ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में। तो दिस ब्लैक पार्ट जो कि मिडल में है, दिस इज द मूवेबल कॉन्टैक्ट कैरियर। नाउ दो कॉन्टैक्ट्स अरेंजमेंट है। फर्स्ट वन इज द मेन स्टेशनरी कॉन्टैक्ट एंड मेन मूवेबल कॉन्टैक्ट। जब भी हम कॉन्टैक्टर को कंट्रोल सप्लाई देंगे तो जो कॉन्टैक्ट है मूवेबल वो फिक्स कॉन्टैक्ट पे मिल जाएगा। दो कोर अरेंजमेंट है, फर्स्ट वन इज द स्टेशनरी कोर और मूवेबल कोर। जैसे ये बीच में येलो पार्ट इज द कॉइल। व्हेन वी सप्लाई टू दिस कॉइल, electromagnet happen and magnetic flux will be occur here. So after that the force will be occur which will pull this movable cord to the stationary cord. तो जैसे ही movable cord stationary cord पे आके मिल जाएगी तो जो कॉन्टैक्ट है वो इस कोर के साथ अटैच है, जो कि मेन कॉन्टैक्ट से मिल जाएंगे और जो कॉन्टैक्ट है वो ऑन स्टेट में आ जाएगा। So this is the open state or off state of the contactor. क्योंकि movable contact और stationary contact आपस में टच नहीं है। Now when we give the supply to the coil, so magnetic force will be occur here inside the coil, around the coil, and these movable core will be touched to the stationary core. Right, so this is how a contactor will be coming to the closed state. So when we cancel the excitation, जैसे ही हम सप्लाई कट करते हैं तो अगेन मूवेबल कोर अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाती है। Now जब कॉन्टैक्टर ओपन होता है जो कॉन्टैक्ट्स है, मेन कॉन्टैक्ट है, जैसे ही ओपन होंगे तो वहाँ पे आर्क यूज होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पहले करंट फ्लो कर रहा था, उसको हम इंटरप्ट करेंगे तो आर्क कॉन्टैक्ट्स पे लगेगी। उस आर्क को क्विंच करने के लिए आर्क डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर्स रहते हैं कॉन्टैक्टर के अंदर, जो कि मेटल के बने होते हैं और इसमें मेटल प्लेट्स के लेवल्स पर रहते हैं। जैसे कि आर्क मेटल प्लेट्स के लेवल्स को टच करती है तो आर्क जो लाइन में वो इंक्रीज हो जाती है और वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे मेटल प्लेट्स के अंदर वो चेंज हो जाता है। राइट, सो नाउ कॉन्टैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए कुछ यूटिलाइजेशन कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू द लूप। जब भी आप कभी इंडस्ट्री में जाओगे आगे तो कॉन्टैक्टर्स आप देखोगे किसी भी पैनल के अंदर, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जाते हो तो कंडक्टर के ऊपर लिखा रहता है AC1 या AC3, AC4, AC2, these are the utilization category. तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड 60947 पार्ट 4 पार्ट 1, कॉन्टैक्टर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। तो AC1 की जो एप्लीकेशन है वो है नॉन इंडक्टिव एंड स्लाइटली लो इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोड्स के, जहाँ पे मेकिंग और ब्रेकिंग करंट, मेकिंग मीन्स जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस टाइम पे क्या करंट फ्लो हो रहा होगा, ब्रेकिंग जब कॉन्टैक्टर ऑफ होगा उस टाइम पे करंट क्या फ्लो होगा। तो मेकिंग विल बी 1 टाइम एंड ब्रेकिंग विल बी 1 टाइम। AC2 is for the safety induction motor, whereas making current will be the 2.5 times and breaking current will be the 2.5 times. AC3 is for the spiral cage motors or high inductive loads where making current will be 6 times, क्योंकि नॉर्मली मोटर का उसका स्टार्टिंग करंट जितना रहता है उस पर कॉन्टैक्टर को ऑन होना होगा, ऐसा नहीं कि कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट चल जाए। 6 time currents should have been here by the contact of the contactor, and braking will be at 1 times. AC4 is the for spiral cage motor for starting plugging and inching operations और 3 ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए, जहाँ पे मेकिंग एंड ब्रेकिंग विल बी एट 6 टाइम्स। तो एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे मोटर स्टार्ट होगी, इसका अभी स्टार्टिंग करंट भी फ्लो होगा कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रहता है, एंड मोटर को
बंद भी करना पड़ता है और अगेन आगे दूसरी मोटर को स्टार्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो ब्रेकिंग होती है वो भी 6 टाइम्स भी करनी होती है। तो फॉर दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस AC 450 कंडक्टर will be used. Now second one is the thermal overload related. तो बेसिकली कहाँ भी होती है हमें इसका कौन सा लगा है इसी Conductor basically जो conductor है utilization जो कैटेगरी है उसकी करंट कैरी कंडीशन करंट कैरी कैपेसिटी कम हो जाती है। जो सेम कंडक्टर है वो इसी बल्ब में यूज कर सकते हैं, इसी फ्री में यूज कर सकते हैं। बट अगर कोई कंडक्टर 9 एम्पियर का है लेट्स से और वो AC 320 में यूज कर रहे हैं इंडक्टिव लोड के लिए, बट उस कंडक्टर को अगर हम रेजिस्टिव लोड में यूज करें तो वो 25 एम्पियर तक बियर कर सकता है। हमारे जो तीन एलिमेंट्स है इसमें AC 320 कंडक्टर 9 एम्पियर। Now this is the structure of thermal overload relay. Thermal overload relay जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं thermal. Thermal means heating से related है बस। तो basically this is the protection device which gives a protection against overload and single phase. दो protection इससे हमें मिल जाते हैं और इसके अंदर बायमेटल्स होती है। बायमेटल्स क्या होती है? इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। बायमेटल्स मतलब दो अलग-अलग मेटल्स की स्ट्रिप्स हैं जो कि आपस में टच होती हैं, जिनके टेम्परेचर और कोएफिशिएंट अलग-अलग है। जैसे अपन मेकिंग और ब्रेकिंग की बात करते हैं, जैसे मेकिंग में हम उस टाइम करंट को मेजर करते हैं, जो ब्रेकिंग के टाइम में मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो ब्रेकिंग के टाइम में आप मेजर करते हैं उसका ना सेकंड केस तो आप 6 टाइम्स करना 6 टाइम्स आपका मेकिंग तो ऐसे में 1 टाइम ब्रेकिंग है, तो उसका क्या मतलब है इसका इक्वल हो रहा है एक्चुअली हमने मोटर स्टार्ट कर दी, थोड़े टाइम बाद नॉर्मल करंट फ्लो में स्टार्ट हो जाएगा, which is 1 टाइम ऑफ द रेटेड करंट। बट अगर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे बहुत फास्ट स्विचिंग है मोटर्स की, कभी एक मोटर स्टार्ट हुई है तो उसका स्टार्टिंग करंट ही फ्लो हो रहा है, हमें रिक्वायरमेंट है कि वो उसी टाइम पे बंद होकर दूसरी मोटर स्टार्ट होनी चाहिए हल्का सा कुछ, तो उस टाइम पे हाई स्टार्टिंग करंट फ्लो हो रहा है, जो ब्रेकिंग होगी वो हाई स्टार्टिंग करंट की होगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे 6 टाइम्स तक दिया गया है, 6 टाइम्स किसी को भी कंडक्टर यूज कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो ये एडवांटेज होगा जैसे कि 6 टाइम मेकिंग हो रहा है 6 टाइम ब्रेकिंग हो रहा है उसको ज़्यादा एडवांटेज है। एडवांटेज ये है ना सर कि मतलब ये इसकी कैपेसिटी है कंडक्टर की, ये 6 टाइम तक ब्रेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। ऑल्दो हमारी एप्लीकेशन अगर नॉर्मल मोटर स्टार्ट करने के बाद थोड़े टाइम बाद बंद करने की तो वो उसके लिए काम हो सकता है, और AC 4 पे अगर चले जाते हैं तो वो उन एप्लीकेशन के लिए हमने स्टार्टिंग में ही बंद करना होगा। ट्रेन से बहुत मोटर सही रहते हैं, तो कुछ है जैसे हल्का सा होगा वहाँ बंद करना पड़ेगा तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उस टाइप की कंडीशंस में भी ये काम किया जाता है। जैसे लोड पे डिपेंड करता है लोड जो हम ज़्यादा टाइम मेकिंग करना है ये बेसिकली डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। नाउ ये इंटरनल स्ट्रक्चर थर्मल ओवरलोड रिलेगा, इसमें मैं बायमेटल के बारे में बता रहा था। बायमेटल में जो अलग-अलग टेम्परेचर कोएफिशिएंट की स्ट्रिप्स हैं वो एक साथ ये टच रहती है, तो जैसे ही हाई करंट फ्लो होता है बायमेटल स्ट्रिप्स के अंदर से, तो जिस मेटल का टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट कम है वो जल्दी गर्म हो जाती है, और जिस मेटल का टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ज़्यादा है वो धीरे-धीरे गर्म होती है। तो व्हाट विल द रिजल्टेंट, जो जल्दी गर्म हो जाती है देर पे गर्म होगी, तो जल्दी गर्म होगी एक्सपेंड होने की कोशिश करती है, दूसरे तरह की जो मेटल है उसको रोकने की कोशिश करती है, तो रिजल्टेंट क्या होता है तो अपनी पोजीशन से बैंड हो जाती है। जैसे कि रेड पोजीशन दिखाई दी, ये दिस इज द इनिशियल कंडीशन और रेड कंडीशन इज द आफ्टर हाई करंट फ्लो टू द बायमेटल। ये अपनी कंडीशन इनिशियल स्टेट से बैंड हो जाएगी,
और यहाँ पे लैच है जो कि NO से कॉन्टैक्ट करेगी, उसको हिट करेगी, जैसे हिट करेगी NO कॉन्टैक्ट NC बन जाएगा और NC